Hello students, welcome in the chemistry class. Chemical bonding and molecular structure. Part 15 and topic for today is types of hybridization, and the type of hybridization today is sp2 hybridization. Chemical bonding and molecular structure इसके कि हम 14 वीडियोज बना चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं 14 वीडियोज में केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर को. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एल्केन्स और वाटर मॉलिक्यूल एंड अमोनिया मॉलिक्यूल में. आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं पुराने वीडियोज में. तो आज हम स्टडी करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन. क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इसके एग्जांपल्स. sp2 hybridization: when one s and two p orbitals hybridize to form three equivalent sp2 hybridized orbitals, all with equivalent energy and identical shape, is known as sp2 hybridization, and orbitals are known as sp2 hybrid orbitals. जब एक s और दो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होते हैं और बनाते हैं 3 न्यू hybrid orbitals, process is known as sp2 hybridization. sp2 1:2 के रेशियो में s and p orbitals यूज हो रहे हैं. टोटल 3 orbitals. Each sp2 orbital has 33.33% s character and 66.67% p character, means 1:2 रेशियो of s and p orbitals. इनका करेक्टर उसी ऑर्डर में प्रेजेंट होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में. These orbitals are oriented in a trigonal planar arrangement at bond angle of 120 degree. So as in example, clear from the example, 2s 2p and 2py, दो p and 1s ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, बना रहे हैं 3 ऑर्बिटल्स जो कि एक दूसरे के साथ 120 के एंगल पे अरेंज्ड होते हैं. लार्ज लोब इंडिकेट करता है p कैरेक्टर, स्मॉल लोब इंडिकेट करता है s कैरेक्टर. सो इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. sp2 का बेस्ट एग्जांपल है PCl3, जो कि सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है. बोरोन इन BCl3 इज हैविंग atomic number 5 and ground state it is having 1s2 2s2 2p1 configuration. So it must form only one bond, but in BCl3 it is having 3 bonds. So 3 bonds formation can be explained by hybridization. Hybridization concept यूज करते हुए हम BCl3 में बोरोन की 3 वैलेंसीज इंडिकेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s jumps to 2py and there are 3 unpaired electrons. तो यहाँ ग्राउंड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक्साइटेड स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है. all these 3 orbitals 2s and 2p are involved in hybridization and form 3 sp2 hybrid orbitals जिनकी सेम एनर्जी होगी एंड आइडेंटिकल शेप होगी. Configuration of chlorine is, it is having 1 orbital with single electron, that is 3pz1. Now during bond formation of BCl3, each sp2 hybrid orbital of boron overlaps axially with 3pz orbital of chlorine and forms sp2pz sigma bond. Because 2 orbitals, these are sp2 from boron and pz from chlorine, so name of sigma bond will be sp2pz sigma bond. These 3 bonds will be at angle of 120 degree. So that is the BCl3. sp2 hybridization in carbon compounds. कार्बन कंपाउंड जिनमें की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, बट इन केस ऑफ एल्कीन्स, first example is the ethylene with formula C2H4. In ethylene, each carbon is sp2 hybridized because one carbon can bond to 3 atoms instead of 4 in case of ethylene.
एक कार्बन तीन एटम से जुड़ा हुआ है, एक एटम इसके पास कम है, सो इट इज इन्वॉल्व इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। केवल 3 ऑर्बिटल्स इसके बॉन्डिंग में यूज होंगे। These sp2 orbitals are arranged at angle of 120 degree. Now carbon is having pz orbital also. कार्बन के पास pz भी बचा हुआ है, and that is not used in hybridization. It is unhybridized and is at right angle to the plane of triangle. जैसा कि डायग्राम में इंडिकेट हो रहा है, sp2 ऑर्बिटल्स ट्रायंगुलर प्लेनर हैं और p ऑर्बिटल्स जो कि ग्रीन बॉक्स से दिखाए गए हैं, these are unhybridized and present at right angle to the plane of triangle. First of all, sp2 orbital of two carbons, दोनों कार्बन के sp2 orbitals, these overlap with each other and form sp2 sigma bond. कार्बन कार्बन के बीच में बन जाता है एक सिंगल बॉन्ड. Each carbon is having two sp2 orbitals. हर एक के पास दो sp2 orbitals बचे हुए हैं, which are neither axially present nor parallel to each other. ना तो वो एक दूसरे के axial हैं ना ही parallel हैं. So these overlap with s orbital of hydrogen atom and form sp2s sigma bond. इथाइलिन में दोनों कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. सबसे पहले दोनों कार्बन के एक sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, बनाते हैं sp2 सिग्मा बॉन्ड. उसके बाद हर एक कार्बन के पास है sp2 ऑर्बिटल 2 जो कि हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके बनाते हैं sp2s सिग्मा बॉन्ड. तो ये है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इन इथाइलिन. बट p orbitals are still present and carbon is having only 3 valency up to sigma bond formation. अभी इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई हैं. 4th वैलेंसी को समझाने के लिए यूज करेंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नाउ ईच कार्बन इज हैविंग वन अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल. pz ऑर्बिटल विच आर पैरेलल टू ईच अदर. दो कार्बन के pz ऑर्बिटल एक दूसरे से पैरेलल हैं एंड दीज ओवरलैप लेटरली और साइड वाइज. साइड से ये ओवरलैप करते हैं, लेटरली ओवरलैप करते हैं एंड दीज फॉर्म पाई बॉन्ड. सो वी कैन से द electron clouds of pi bonds are just present above and below the internuclear axis. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो कि sp2 ऑर्बिटल्स को इंडिकेट कर रही है, सिग्मा बॉन्ड को इंडिकेट कर रही है, उसके ऊपर और नीचे pz के जो इलेक्ट्रॉन्स है जो ओवरलैप कर रहे हैं, ये अबव एंड बिलो द प्लेन रोटेट करते रहेंगे और इसको सराउंड करते हैं सिग्मा बॉन्ड को. The electron clouds are distributed above and below the internuclear axis. बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद क्लियरली हम देख सकते हैं ब्लू कलर में जो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड शो किए गए हैं विच आर इंडिकेटिंग पाई बॉन्ड्स. सो ये पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं जस्ट अबव द सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ऊपर या नीचे ये उसके चारों तरफ रोटेट कर सकते हैं. इसे कहते हैं फ्री रोटेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर या नीचे प्रेजेंट होंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं होंगे. ये था हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइलिन. वी हैव टू नोट दैट टू कार्बन्स बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. जो भी दो कार्बन जिनके बीच में एक डबल बॉन्ड है, एल्कीन्स के केसेस में both will be sp2 hybridized. Number 2, pi bond can be formed only after formation of sigma bond. सबसे पहले sigma bond बनेगा and remaining orbitals में बनता है pi bond. तो sigma bond के बाद ही pi bond double bond बन सकता है. It must be clear. So that's all for today. Thank you. Keep watching. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड केमिकल बॉन्डिंग के कंप्लीट वीडियोस को आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन में लास्ट में डिटेल में देख सकते हैं. थैंक यू.